Hello everyone, I am Dr. Pradeep Adaka and I am the faculty of Geology Optional at Evolution Educare, and in this video we will be discussing how geology is one of the better optional for Indian Forest Service examination and for UPSC mains. What are the advantages of this optional over other optionals? And we'll see few strategies regarding the preparation of geology optional, and we'll see how to cover the syllabus, okay, what approach you should follow, and I will tell you how I approach the syllabus while covering it in the classroom. Then I will give you certain sources or books from where you can prepare your own notes for the optional subject. Now, there are certain positive points about this optional. First thing, that it is a science subject. So in science optionals, for the examiner the scope is very limited because he has to ask or he has to limit himself within particular topics. So definitely he has to cover the important areas of that syllabus. So now how will you know what are the important areas? First of all, before choosing any optional, first you have to go through the previous year's questions so that you will understand the difficulty level, whether the questions which are asked, whether you can easily separate them and identify them with the syllabus, or the scope is unlimited where the examiner can invent new questions. Now, but for science optionals, yes, the examiner has to restrict himself within the scope of the syllabus. So as a science optional, geology has that advantage, that there will be certain areas from where the examiner has to definitely ask the questions. Suppose there is in the syllabus in general geology there is mentioned that in the syllabus it is mentioned regarding volcanoes, earthquakes, meteoroids. So definitely he has to give questions from that particular topic. Okay, so in one year or the other year definitely the question will appear from that topic. So there is a restriction on there is a limitation on the examiner that he has to ask from those topics. So he cannot invent, the way that particular question can be asked, there is only one or two ways in which the particular question or the particular concept can be asked. So in that way, as a science optional, geology has that benefit. Now in the Indian Forest Service examination, it is one of the most popular optional. So almost 50% of the aspirants who are appearing the interview, they have geology as one of their optionals. So it is one of the most popular optionals. And second thing, the syllabus is very short. Okay, when compared to other optionals, forestry and geology, these two subjects have shorter syllabus. The syllabus is relatively short when compared to other optionals. So there you also have another advantage, that syllabus is restricted and short. Then most critical point, first thing before starting the preparation is identify the previous year's question, separate them into different parts. Okay, there will be questions from structural geology, separate them as a part of structural geology. There will be questions from geomorphology. You have to section wise divide the previous year's question and see what are the important areas. Okay, if a particular question is asked from a particular topic, how it is asked, what particular part is asked within that concept. So then you will know what are the important areas. So previous questions, and they are repeated. Almost 50 to 60% of the questions are repeated with same language. नेक्स्ट ईयर भी सेम ही आता है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होके आता है.
So if you look at the last 5 years questions, then you can easily predict what will be the, तुमको 50 to 60% questions आराम से predict कर सकते हो. So repetition is one of the important advantage. So previous years questions are regularly repeated. In one way or the other, they will be repeated. So you have that advantage. तुम प्रिडिक्शन कर सकते हो कि क्या आ सकता है या फिर प्रीवियसली क्या है, उसके बेसिस में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो. देन ऑब्वियसली व्हेन यू नो दैट क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड, you can focus on the important areas, you can revise them, and that makes your scoring easy. So scoring 250 plus or 300 plus, 250 plus in the Indian Forest Service examination and 300 plus in the Civil Service mains examination is not very difficult. You can easily score 300 plus with proper revision, with focusing on previous year's questions, and you can easily get 250 or above 250 in the Indian Forest Service examination. So geology optional has several advantages. So focus on the previous year's questions so that you can pick out important topics of the syllabus. तुमको एक particular syllabus जो mention किया उससे important topics को तुम easily pick कर सकते हो. Okay, and this can be a common optional for both civil service examination and forest service examination. So civil service examination में भी mains दोगे, फिर 2-3 महीने के बाद forest service का examination आएगा तो common है, optional, you don't need to revise much, बहुत ज़्यादा तुमको repeat नहीं करना पड़ेगा, freshly नहीं prepare करना पड़ेगा, you can easily focus on your second optional. आप दूसरे optional के ऊपर easily focus कर सकते हो. So common optional ले सकते हो as a common optional for both Indian Forest Service examination and for mains examination. Now regarding syllabus, the syllabus is divided into 12 chapters. So chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, 5 and 6. Chapter 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So 12 chapters are there in the syllabus, and while covering the syllabus in the classroom, first we will do paper 1, and in paper 1 I generally skip this part and I cover stratigraphy later. So because the syllabus is not properly arranged, क्योंकि stratigraphy generally आपको rocks के बाद, once you study the rocks, igneous metamorphic rocks and sedimentary rocks, once you study that, आप इस ये स्ट्रैटिग्राफी इसके बाद आना चाहिए. स्ट्रैटिग्राफी शुड बी कवर्ड आफ्टर दिस, लेकिन स्ट्रैटिग्राफी पेपर 1 में दिया हुआ है. तो क्लासरूम में हम लोग स्ट्रैटिग्राफी को रॉक्स के बाद पढ़ते हैं. सो इन द पेपर 1 फर्स्ट आई विल कवर चैप्टर 1 to 6, विल स्किप चैप्टर 5 हियर एंड वी विल कवर द चैप्टर 5 आफ्टर वी स्टडी रॉक्स. अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे रॉक्स का नाम मेंशन करते हैं, कौन से ग्रुप में कौन सा रॉक्स हैं. Unless you study these rocks, you will not be able to understand क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या इंपॉर्टेंस है, वरना तुमको ये क्रैम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा. अदरवाइज ऑल्सो इंडियन स्ट्रैटिग्राफी में थोड़े पार्ट्स हैं जो तुमको क्रैम करने पड़ते हैं. देयर विल बी सर्टेन पार्ट्स विच यू हैव टू क्रैम. यू वोंट अंडरस्टैंड ए थिंग इफ यू स्टडी दिस विदाउट अंडरस्टैंडिंग रॉक्स. सो चैप्टर 5 विल कवर आफ्टर वी स्टडी द रॉक्स. सो हम लोग पेपर 1 में 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे एंड पेपर 2 में 7 chapters पढ़ेंगे. So in paper 1 we'll cover 5 chapters and in paper 2 we'll cover 7 chapters. So stratigraphy will be covered after igneous and metamorphic rocks and sedimentary rocks. So once we study this, then we will cover stratigraphy. So these are the topics or chapters which we will cover in the syllabus. Now so we have general geology, geomorphology and remote sensing. Now remote sensing, again within the remote sensing there are, if you see based on the previous year's questions, this topic might seem very small but उसके अंदर बहुत सारे topics हैं, resolution है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर. So this is another chapter, separate chapter बोल सकते हो, because it is extensively covered
इन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. सो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर्ड है. इसमें GIS भी है. अगेन तुम अगर रिमोट सेंसिंग के अंदर जाओगे तो एरियल फोटोग्राफी भी कवर किया हुआ है. बहुत सारे टॉपिक्स हैं. दिस माइट सीम ए स्मॉल टॉपिक बट इट कैन बी कवर्ड एज अ होल चैप्टर. देन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है. अगेन यहाँ से बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं. अनकन्फर्मिटी हो गया, फोल्ड्स हो गया, फॉल्ट्स हो गया, उनके ऊपर रेगुलरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. पेलिएंटोलॉजी पार्ट. नाउ द थिंग इज देयर इज स्लाइट difference in the Indian Forest Service examination syllabus and the civil service syllabus. Now with regard to this particular subject, paleontology में बहुत ज़्यादा difference है. Paleontology में invertebrate paleontology, okay, so there is invertebrate paleontology included in the Indian Forest Service examination, which is not there in the mains. So civil service mains examination में, so we have origin and evolution of horse, equidae, proboscidae that is elephant, and hominidae that is apes and human. वो तीन जो है तुम्हारे पास evolution of horse, human and elephant which is covered in civil service mains examination is also covered in Indian Forest Service. तो Indian Forest Service examination में भी है man, horse और elephant का evolution. mains examination में भी है, Indian Forest Service examination दोनों में है. बट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में जो एक्स्ट्रा है इसमें इन्वर्टिब्रेट पेलियोंटोलॉजी इज एक्स्ट्रा. तो थोड़े एक्स्ट्रा ग्रुप्स फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में एडेड है. इसमें थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है पेलियोंटोलॉजी का. बाकी जगह पर ऑलमोस्ट सिमिलर, सेम टू सेम है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है. बस मेन डिफरेंस जो है पेलियोंटोलॉजी वाले में है. एक दो टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं, थोड़ा ऐड होगा, बट जो मेजर डिफरेंस है सिलेबस में विच इज विथ रिस्पेक्ट टू पेलियोंटोलॉजी. देन वी हैव स्ट्रैटिग्राफी विच विल बी स्टडीइंग डिफरेंट रॉक ग्रुप्स आफ्टर वी कवर द पेट्रोलॉजी पार्ट. देन हाइड्रोजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी ये सेपरेट है. यहाँ पर हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, डैम, टनल, रोड्स, रेलवेज, उनके बारे में बात करेंगे. व्हाट आर द जियोलॉजिकल कंसिडरेशंस. हाइड्रोजियोलॉजी बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी है, उसके बारे में है. सो एक्विफर्स के बारे में, हाउ वाटर मूव्स, वेल्स, स्प्रिंग्स, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे. देन मिनरोलॉजी में, सो इफ यू कंसिडर ऑल द टॉपिक्स, मिनरोलॉजी स्पेसिफिकली अगर हम लोग स्टीरियोस्कोपिक जो एस्पेक्ट है, स्टीरियोग्राफी जो है तुम्हारा मिनरोलॉजी का, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है. अदरवाइज वी हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ मिनरल्स. उनको हम लोग स्पेसिफिकली इंडिविजुअली प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस में हम लोग कवर करेंगे कि कौन से डिफरेंट क्लासेस हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, देन वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं. उसमें फिर सिलिकेट्स हैं. विल कवर इंडिविजुअल मिनरल ग्रुप्स सेपरेटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. क्या क्वेश्चन पूछा गया उसके बेसिस में हम लोग क्लासरूम में कवर करेंगे. देन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. और रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन पेपर 2. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी एंड सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है. ओके, सो देन इकोनॉमिक जियोलॉजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. यहाँ से भी एटलीस्ट 4 और 5 क्वेश्चंस आते हैं. माइनिंग जियोलॉजी विल बी मेनली फोकसिंग ऑन हाउ ओर्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स इज डन. जियोकेमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल जियोलॉजी मेनली यहाँ पर नेचुरल हैजार्ड्स हैं या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओके, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. आई विल नॉट गो डीप हियर. मैं बस तुमको बता रहा था कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द डिफरेंट चैप्टर्स विच विल बी कवरिंग इन द सिलेबस. नाउ रिगार्डिंग द कोर्स फॉर्मेट, सो ऑफलाइन कोर्स इज ऑफर्ड. तो हमारा क्लासरूम जो कोर्स है, क्लासरूम कोर्स इज ऑफ 5 months ड्यूरेशन. सो अप्रॉक्सीमेटली 5 months का ड्यूरेशन है कोर्स का. एंड दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अटेंड, आई मीन अगर आप क्लासरूम नहीं आना चाहते हो, इंडिया के किसी और पार्ट में हो, तो वी आर मेकिंग श्योर दैट लाइव ऑनलाइन इज मेड अवेलेबल.
सो ऑफलाइन क्लास होगा, आपका क्लासरूम है मुखर्जी नगर में एवोल्यूशन का, सो वहाँ पर हमारा वीकली क्लासेस होगा. एंड दोज हु आर नॉट एबल टू अटेंड बिकॉज दे लिव इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, सो we are making sure we are making arrangements for the live online classroom, live online format. So presently we have classroom course and soon we will be able to provide live online session. Then notes, so I have personally prepared notes based on the previous year's questions. So हम लोग classroom में जो notes देंगे वही live online वालों को भी जाएगा. Same notes will be there for live online students and the classroom students. So syllabus wise based on the previous year's questions क्या पूछा गया उसके basis में I have prepared the notes that we will be providing to the students. Obviously personal guidance है, you can clear your doubts in the classroom itself or in the break session, during the break or after the classroom. After the class is over you can ask me. So I will, after the classroom is over, I will be staying for some time in the office and you can come and clear your doubts, whatever you have. Or if you have written any answer to a question and you want to show me कि सर मैंने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है, क्या ये सही है या मुझे क्या improvements करने पड़ेंगे, that you can always do. I will be available after the class. Then classroom tests and discussion. So there will be 4 tests, 2 for paper 1 and 2 for paper 2 that we will be conducting. So उस टेस्ट का डिस्कशन भी करेंगे हम लोग. So there will be 4 class tests. So this is how we'll proceed in the course. So there will be 5 months duration course, offline course which is weekly classes, and we are making sure live online course is also available for those students who are not able to attend. So live online and classroom course is available for geology. Now those who are preparing on their own, जो खुद से prepare कर रहे हैं, so these are the sources from where you can prepare your notes. So always begin with isolating the questions subject wise. So previous year's question papers निकालो, subject wise separate करो questions को, and based on those questions see the syllabus and make your notes. So you will know what are the important parts of the syllabus by looking at the previous year's questions. So general geology, where volcanoes, earthquakes, meteoroids, ये वाले topics जो हैं जो general geology में आते हैं. Now you can always follow any geography book, कोई भी geography book ले लो. Okay, so physical geography का book ले सकते हो तुम, सविंदर सिंह ले लो, या फिर इंटरनेट में चले जाओ, बहुत सारे sources available हैं. You can always prepare your notes from the internet or any geography book. So general geology के लिए. Now geomorphology के लिए विलियम डी थॉर्नबरी थोड़ा सा एक्सटेंसिवली कवर करेगा. अगेन गो थ्रू द चैप्टर एंड प्रिपेयर योर नोट्स सेलेक्टिवली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. अगर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, तुम मोहपात्रा का बुक खरीद सकते हो, या फिर तुम पीके मुखर्जी, ओके, यू कैन गो फॉर एनी लोकल बुक विच इज अवेलेबल. Right. So William D. Thornbury, it is famous for geomorphology. You can always keep it as a reference book. तुमको कोई थोड़ा deeply chapter पढ़ना है, understand करना है, तो you can always go through this book. Now remote sensing के लिए एक कोई specific book नहीं है जो cover करता है. You have to go through internet, search for those questions which have been asked in the previous examination. So अगर रेजोल्यूशन के ऊपर पूछा है तो तुम पर्टिकुलरली क्या क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक को सर्च करो इंडिविजुअल इंटरनेट पे, सेपरेटली नोट्स बनाओ. टाइप्स ऑफ इमेजेस के ऊपर पूछा है या फिर एरियल फोटोग्राफी के ऊपर पूछा है, ओके. सो या फिर आप एनसीईआरटी बुक्स भी यूज कर सकते हो. एनसीईआरटी में भी रिमोट सेंसिंग का चैप्टर है, एरियल फोटोग्राफी का चैप्टर है, वहां से भी आप नोट्स बना सकते हो. सो रिमोट सेंसिंग के लिए कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं है जो अब unnecessary है. You can look at the previous year's question and you can search on the internet. You will get plenty of material from where you can prepare your personal notes. Now, structural geology, Maryland P. Billings, और आप इंटरनेट यूज कर सकते हो या फिजिकल जियोग्राफी का बुक्स यूज कर सकते हो, बट दिस इज मोर प्रिसाइज
यहाँ पर तुमको थोड़ा डीप में मिलेगा टॉपिक्स, सो यू कैन रिफर दिस बुक और यू कैन गो फॉर इंटरनेट से आप बना सकते हो। ओके देन पेलिएंटोलॉजी के लिए जैन एंड अनंतरामन, ये एक बुक अवेलेबल है जहां पर इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट पेलिएंटोलॉजी कवर्ड है। हाँ, यहां पर इनवर्टिब्रेट पेलिएंटोलॉजी के लिए नोट्स बना सकते हो रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ह्यूमन एंड प्रोबोसिडे विच इज एलिफेंट। वहां पर तुम इंटरनेट यूज कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू, यू कैन सर्च द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स नोट्स, उसके लिए तुम आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। जैन एंड अनंतरामन में इनवर्टिब्रेट पेलिएंटोलॉजी और जो जनरल पेलिएंटोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं, ओके, माइक्रोफॉसिल्स क्या है, उनका एप्लीकेशंस क्या है, उनके लिए। नाउ विथ रिगार्डिंग टू एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोफॉसिल्स, वहां पर भी इंटरनेट ज्यादा आपको यूजफुल रहेगा रादर देन दिस बुक, बट स्टिल एक बुक अवेलेबल है जो पीके मुखर्जी में भी है, कवर किए हुए टॉपिक्स हैं पेलिएंटोलॉजी का, लेकिन वहां पर तुमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे इफ यू डिपेंड अपॉन ओनली पीके मुखर्जी। पीके मुखर्जी में थोड़े एस्पेक्ट्स कवर किया है, लेकिन सारे का सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। या इट इज ए जनरल जियोलॉजी के लिए अच्छा बुक है, बट पेलिएंटोलॉजी एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया वहां पर। देन इंडियन स्ट्रैटिग्राफी के लिए रविंद्र कुमार या फिर इंटरनेट, बोथ आर गुड सोर्सेस। तो आप रविंद्र कुमार यूज कर सकते हो या फिर इंटरनेट में इंडिविजुअली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेसिस पे ढूंढ सकते हो आप नोट्स। हाइड्रोजियोलॉजी के लिए टॉड एंड लैरी, एंड ऑल्सो यू कैन डिपेंड अपॉन इंटरनेट। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस भी होंगे जहां से आप इंडिविजुअल टॉपिक्स का नोट्स बना सकते हो। नाउ इंजीनियरिंग जियोलॉजी में परवीन सिंह, यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड जनरल जियोलॉजी का बुक है, इंजीनियरिंग एंड जनरल जियोलॉजी, दैट इज द name of the book. Now here tunnels, डैम, वहाँ उन दोनों के बारे में टॉपिक्स के बारे में नोट्स बना सकते हो वहाँ से। ब्रिजेस, एंड ऑल्सो इंटरनेट पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको, इंजीनियरिंग जियोलॉजी के पार्ट्स हैं, या फिर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स जो टॉपिक्स हैं उनके लिए भी इंटरनेट से आराम से मिल जाएगा आपको टॉपिक। सो इंजीनियरिंग जियोलॉजी के लिए परवीन सिंह से दो, पूरा का पूरा तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट फ्यू टॉपिक्स विल बी कवर्ड। फॉर रेस्ट यू कैन डिपेंड अपॉन इंटरनेट। नाउ मिनरलॉजी के लिए रूटलेस एलिमेंट्स ऑफ मिनरलॉजी है, या फिर इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हो, और इवन इंजीनियरिंग जियोलॉजी वाला बुक है, इस पर भी मिनरलॉजी का पार्ट कवर्ड है। सो यू कैन यूज मल्टीपल सोर्सेस एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रिपेयर योर नोट्स। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के लिए टायरल, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के लिए भी टायरल रिफर कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन डिपेंड अपॉन नोट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टुलेन। सो यूनिवर्सिटी ऑफ टुलेन के यूनिवर्सिटी जो नोट्स हैं वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ टुलेन का जो है वेबसाइट है, वहाँ पर दिया हुआ है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर ऑल्सो, या फिर ऑब्वियसली इंटरनेट में तो बहुत सारे सोर्सेस होंगे। इकोनॉमिक जियोलॉजी के लिए एक बेसिक छोटा बुक है उमेश्वर प्रसाद, और अदरवाइज इंडिविजुअली आप पर्टिकुलर जो तुम्हारा मिनरल है उनके बारे में आप इंटरनेट से इंडिविजुअली आप प्रिपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेसिस में। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड हो गया, कहाँ कहाँ पर है उनके माइंस, कॉपर है, कहाँ कहाँ पर इंडिया में माइंस है, क्या है। इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, वहाँ से आइसोलेट करके इट माइट टेक सम टाइम, बट हम लोग ने तो ऑलरेडी बना चुका है, मैंने तो ऑलरेडी पर्सनली नोट्स बनाया है कलेक्ट करके सर जगह से, वो क्लासरूम में नोट्स मैं तुमको रेडीमेड दे दूंगा। फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन दे हैव टू, अदरवाइज इफ यू हैव क्लासरूम नोट्स, अगर आपके पास क्लासरूम नोट्स हैं आपको बाकी बुक्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू डायरेक्टली गो थ्रू द नोट्स, यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर नोट्स और टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम आउटसाइड। वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस प्रॉपरली कवर करेगा क्लासरूम नोट्स। सो दिस इज फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन, ये उनके लिए जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ माइनिंग जियोलॉजी, RM उमा मथे एक बुक है माइनिंग जियोलॉजी के बारे में। नाउ यहाँ पर आप ओर एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे, कैसे कैसे मेथड्स हैं, एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन कैसे करते हैं, वो मेथड्स इसमें हैं। हाँ, दिस बुक इज नॉट, I mean everything will not be obviously covered by the book, again you have to depend upon internet for some things.
देन जियोकेमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल जियोलॉजी, कोई पर्टिकुलर बुक आई मीन एज सच मार्केट में तो मुझे नहीं मिला जो सारे टॉपिक्स कवर करता है. देयर विल बी इंडिविजुअल टॉपिक्स, एनवायरमेंटल जियोलॉजी के थोड़े टॉपिक्स होंगे, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, ऐसी चीज़ें होंगी. बट आई विल आस्क यू टू गो टू इंटरनेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो और इंटरनेट पे डिपेंड करो. रादर देन बाइंग 5 और 6 डिफरेंट बुक्स फॉर ए सिंगल चैप्टर, एक चैप्टर के लिए 5-6 बुक्स खरीदने से अच्छा है इंटरनेट से थोड़ा टाइम दो, गिव इट वीक्स टाइम, एक हफ्ते में पूरे क्वेश्चंस को आप इंटरनेट से आप सोर्सेस को बनाओ और वहां से नोट्स बना लो, रादर देन परचेजिंग 5 और 6 बुक्स विच विल बी वेरी बल्की और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ मनी. सो डिपेंड अपॉन द इंटरनेट फॉर दिस चैप्टर. नेचुरल हैजार्ड्स हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल कैसे डिस्पोजल टेक्निक्स हैं, वो सब तुमको इंटरनेट में मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी पर्टिकुलर बुक फॉर दैट. सो दीज आर द सोर्सेस विच यू कैन रिफर. सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग अस, we will provide you everything. You don't have to refer any textbook for geology because there are plenty of sources. बहुत सारे sources हैं, पर कोई भी एक पर्टिकुलर बुक सारी चीज़ें कवर नहीं करता है. सो अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज से आपको बनाना पड़ेगा. सो टेक योर टाइम एंड प्रिपेयर योर पर्सनल नोट्स डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. फॉर क्लासरूम स्टूडेंट्स एंड लाइव ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू पर्सनल नोट्स which I have prepared for the geology optional. Okay, so I am Dr. Pradeep Adaka. I am the faculty of geology at Evolution. So if you have any queries, you can contact Evolution office. Thank you very much.